Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you are fit and fine at your home and you are following the lockdown. So, this is Harish Gangwar present here, and again, like drama, I have brought for you some summary and explanation from the poetry section. And this is the first poem in class 9th. In class 9th syllabus, there are 10 poems and 10 stories. So, today I have brought the first poem, The Heart of the Tree. And who is the poet? Henry Kyler Bunner. Henry Kyler Bunner. He is the poet of this poem. So I am providing you the summary. And in this poem, the importance of trees has been depicted in such a form that you will understand how important the trees are for us, and not only for us, even for the whole nation and for whole humankind. So let's see in the summary. So this is the summary of the poem The Heart of the Tree. The Heart of the Tree by the American poet and novelist Henry Kyler Bunner is a fine piece of poetry with a simple theme and a simpler structure. एक बहुत ही फाइन पीस है पोइट्री का, यानी बहुत अच्छी पोएम है, बहुत सिंपल थीम है इसमें, और इसका जो स्ट्रक्चर है पोएम का बहुत ही सिंपल है, यानी आप बहुत अच्छे से इस पोएम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. The poem was originally published in 1912. You must remember the publication of the poem and the name of the author or poet and the name of the poem. So who was Henry Kyler Bunner? He was an American poet. And in this poem, he has told us planting a tree is always a great work. What is it? Planting a tree is always a great work. Why it is great? For the mankind, because you alone plant the trees and the tree gives benefits to all the people living nearby you, your neighbors, your citizens residing in the country, and every person who remains around the trees. जो कोई भी पेड़ के आसपास रहता है, भले ही दूर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उसके लिए बेनिफिशियल ज़रूर है. आपके लिए तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि आप उसकी वुड को, उसकी लकड़ी काम में लेंगे, एंड यू विल हैव द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, बट it is beneficial for everyone, for whole humankind and all the animals, birds also, because they get oxygen and some birds get shelter in the trees. So it is a great work for the mankind. But the poet has found out new ways to look at the plants and plantation. लेकिन पोइट ने सिर्फ लिमिटेड नहीं रखा है इस चीज़ को. ही हैज़ फाउंड आउट न्यू वेज टू लुक एट द प्लांट्स एंड प्लांटेशन. एक नया तरीका उसने ढूंढ निकाला है कैसे हम प्लांट्स और प्लांटेशन को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस दिखाकर. इन हिज पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री ही ग्लोरीफाइज द एक्ट फर्दर, shows how a tree helps life on earth, and says that it has a direct connection to a nation's growth. What he has glorified? He glorifies the act further. यानी जो काम है प्लांटेशन का उसको बहुत बार ग्लोरीफाई उन्होंने किया है, बार बार ग्लोरीफाई किया है और शो किया है कि जो ट्री है किस तरह से हेल्प करता है लाइफ को सस्टेन करने में. अर्थ पे लाइफ है, चाहे कोई भी लाइफ हो, सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, एनिमल लाइफ भी, बर्ड लाइफ भी, और हर तरह की वो लाइफ जो सिर्फ ट्रीज़ पर डिपेंड करती है. तो अर्थ पर उस लाइफ को सपोर्ट करता है एक ट्री प्लांटर, एक पेड़ लगाने वाला. एंड सेज दैट इट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन टू अ नेशंस ग्रोथ. और किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए ये एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है. कहने का मतलब जो ट्री प्लांटर है वो एक डायरेक्ट वे में, भले ही लोग समझे ना समझे, किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं. इनडायरेक्टली
ये नेशन की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, एक ट्री प्लांटर। All the three stanzas of the poem, the heart of the tree starts with a refrain. So this poem has three stanzas and they start with a refrain. Refrain is the remaining line, यानी एक ही बार जो लाइन है बार बार रिपीट होती रहती है पूरी पोएम में, उसको रिफ्रेन बोला है। विद द पोइट आस्किंग व्हाट द मैन एक्चुअली प्लांट्स टू प्लांट्स अ ट्री, और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, यानी जो इंसान पेड़ लगाता है वो क्या क्या चीज़ प्लांट करता है। सबकी नज़रों में डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ लगाने वाला सिर्फ एक पेड़ ही लगा रहा है, ही इज़ जस्ट प्लांटिंग अ ट्री, नथिंग मोर। बट इन द पोइट्स व्यूज ही इज़ प्लांटिंग, व्हाट डज ही प्लांट, he is planting the friend of sun and sky, he is planting the shelter for birds, and he is planting the growth of whole nation, and he is planting the happiness for whole humankind. इतनी सारी चीज़ों को वो प्लांट करता है, सिर्फ एक प्लांट नहीं करता, यानी सिर्फ एक पेड़ को प्लांट नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्लांट करता है। Then he chooses to reply it by himself, फिर अपने आप ही रिप्लाई देता है पोइट, and shows what a tree means to the humankind and to the nature. And he shows that what does a tree mean to humankind and to the nature. इंसानियत के लिए और नेचर के लिए एक पेड़ की क्या वैल्यू है, ये बात पोएट पूरी पोएम में समझाता है। thus proving how great that man is, और इस तरह से प्रूव करता है कि जो एक इंसान पेड़ को लगा रहा है वो कितना ग्रेट है, कितना महान है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को बताता है क्या क्या प्लांट करता है। फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, क्योंकि वो सन के ज़्यादा करीब रहता है, उसकी हीट को ऑब्जर्व करता है, फूड क्रिएट करता है। स्काई के लिए भी, स्काई को प्यूरिफाई करता है तो उसका फ्रेंड है। एंड शेल्टर फॉर बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स उसमें रहते हैं, उनका होम है, होम बन जाता है। ऑक्सीजन सभी को मिल रही है, भले ही हम लगा रहे हैं, भले ही हमारा पड़ोसी से झगड़ा है, बराबर वाले घर वाले से झगड़ा है, लेकिन अगर हमने अपने घर में प्लांट लगाया है तो उसकी ऑक्सीजन सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, सभी तक जा रही है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। एंड जो भी वुड्स है, जो भी लकड़ियाँ हैं या फॉरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं पूरी नेशन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड फॉरेन करेंसी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फॉरेस्ट पे। द रिदम इज़ अमेजिंग, इसका जो रिदम है पोएम का बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। द राइम स्कीम इज़ ए बी 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 सी सी ए ए। इट मीन्स पहले यहाँ पर जो एक लाइन आएगी वो लाइन की राइमिंग यहाँ पर आएगी, जैसे स्काई एंड फ्लाई, ट्री एंड फ्री, लाइक इट। एंड दोनों तरफ ए है, लास्ट में फिर ए है, तो जो इस तरह हारमोनी सिम्फनी, ट्री फ्री, सबकी एक जैसी राइमिंग है, तो ये राइमिंग स्कीम होती है। फिर यहाँ पर जो बी वाला, जो राइमिंग यहाँ पर आएगी, जैसे स्काई, फ्लाई, ट्राई, यहाँ पर ऐसी राइमिंग होगी। फिर सी सी में एक अलग टाइप की राइमिंग होगी, तो ये राइमिंग स्कीम होती है। फॉर ईच स्टैंजा, हर स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम है। दिस इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द सेलिब्रेटेड स्पेंसरियन स्टैंजा, अ 9-line स्टैंजा विद द स्कीम ए बी बी सी बी सी सी सी। एक डेविएशन है, जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो स्टैंजा है उनका 9-line स्टैंजा होता था, और उसमें जो राइमिंग स्कीम होती थी वो ये थी ए बी बी सी सी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी सी ए, ये राइमिंग स्कीम है, यहाँ पर एक डेविएशन है। दो द लैंग्वेज इज सिंपल, केयरफुल वर्डिंग्स मेक्स द पोएम मोर एक्सप्रेसिव एंड ऑब्वियसली म्यूजिकल एंड अट्रैक्टिव। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इसलिए इसकी जो केयरफुल वर्डिंग्स है, बहुत अच्छे से वर्ड्स को रखा है पोइट ने, तो पोएम बहुत ही एक्सप्रेसिव और म्यूजिकल और अट्रैक्टिव बनती है। सो माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम, and next day I will give you the explanation
and my request is for everyone, spread my channel by sharing it, and tell your friends to subscribe it, because in future they are going to get many helps from the channel. And language classes also be started, all the subject matter that is related to your exams. So thanks and have a wonderful day. Students, this is the name of channel, HAREESH and Gangwar, Harish Gangwar. This is the channel. Subscribe it, like and share to your friends. Thanks and have a wonderful day.